آج پھر میں اسی کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، کانوں میں ہینڈ اسپرے لگائے اپنی ہی دھن میں مگن تھی، جب اچانک مجھے ایک خوشبو کا احساس ہوا تو میرے چہرے پر بلا کی سنجیدگی آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ آخر کون آیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھنے والی تھی اور پیچھے مڑ کر اس وجود کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر چلی جاتی، اس نے میری سیٹ پکڑ لی۔ ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ ڈیوڈ فوراً میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں، خوبصورت ماتھے پر آتے سلکی سیاہ بال اور ہمیشہ کی طرح سیاہ ہوڈی سے چھلکتا اس کا سفید رنگ والا چہرہ اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ جو بھی لڑکی اسے دیکھتی وہ اسے نظریں نہیں ہٹا پاتی، مگر میں نازنین تھی، اپنے نام کی اکلوتی لڑکی جو اس یونیورسٹی میں پڑھنے آتی تھی۔ میں فوراً اس سے منہ پھیر چکی تھی۔ بولو کیا کام ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرا راستہ نہ روکا کرو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً ناراضگی سے بولا، کیوں نہ روکا کروں؟ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یہاں جو تمہیں اتنی کوفت ہوتی ہے؟ تم تو مجھ سے 3 منٹ کے لیے بھی بات نہیں کر سکتی۔ ڈیوڈ کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ بوائے فرینڈ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہے؟ کبھی تم نے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھا ہے؟ میں صرف اور صرف لڑکیوں سے دوستی کرتی ہوں، لڑکوں سے بالکل بھی نہیں۔ تم بھی اس بات کو سمجھ لو۔ ڈیوڈ نے جیسے ہی میری بات سنی پھر سے یقین دلانے لگا، ارے میں ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ کبھی تم نے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ میں بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے بس تم اچھی لگی ہو اور میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے گویا مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً 2 ٹوک کہا، دیکھو نہیں، میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ مجھے یونیورسٹی میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنا میرا خواب تھا اور یہاں صرف ذہین بچوں کو ہی ایڈمیشن ملتا تھا۔ خوش قسمتی سے میرا نام بھی آ گیا۔ میں اسے یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں بنے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ایک طرف گرلز ہاسٹل تھا اور بالکل دوسری طرف بوائز ہاسٹل۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ یہ یونیورسٹی کافی پرانی تھی۔ پہلی بار میں نے ڈیوڈ کو اس وقت دیکھا جب ہمارا کنسرٹ تھا اور میں اس کنسرٹ سے بالکل دور ایک جگہ آرام سے بیٹھی تھی۔ تب مجھے اس کی نیلی چمکتی آنکھیں دکھائی دی۔ اندھیرے میں بس اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیوڈ نے اس وقت بھی وہی سیاہ ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی اور پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ مجھے اس کنسرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس اپنی کچھ بنگالی اور انڈین سہیلیوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے دیکھا تو حیزل اور فاریہ بھی واپس آ گئی تھی۔ چلو ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، میں نے گھبراتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ ارے رکو، ابھی ہمیں راہل سے ملنا ہے۔ ایسا کرو تم بس 5 منٹ ہمارا انتظار کرو، بلکہ اس بینچ پر جا کر بیٹھ جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ ان دونوں نے دور اس خالی بینچ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے یونیورسٹی کا گیٹ بالکل قریب تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور اپنا بیگ لے کر اس بینچ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے اس اندھیرے میں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اگلے ہی پل مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا وہی نیلی آنکھیں نظر آئی، ہوڈی میں چھپا ہوا چہرہ اور خوف سے میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا اور ان چمکتی آنکھوں سے مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے نہ جانے کیا تلاش کر رہا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، میرا نام ڈیوڈ ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کنسرٹ بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہی تھی، کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ ڈیوڈ نے کافی تجسس سے میرے چہرے پر نظریں جمائے مجھ سے پوچھا۔ میں نے فوراً مختصر جواب دیا، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کنسرٹ دیکھوں، اسی لیے میں اکیلی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھنے والی تھی جب پیچھے سے اس نے آواز دی، رکو تو صحیح، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی آواز سن کر میں وہیں رک گئی۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن اتنی سحر انگیز تھی کہ میں رکنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا، میرا نام نازنین ہے۔ پھر جیسے ہی خاموشی محسوس ہوئی تو سنجیدگی سے بولی، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ میں نے ایک نظر اسے غصے سے دیکھا تاکہ شاید وہ سمجھ جائے کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر میرے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ کھڑے ہو کر میرے قریب آنے لگا، پھر اگلے ہی پل اپنے دونوں بازو کو سینے پر فولڈ کرتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس کی یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، اگلے ہی پل مجھے فاریہ کی آواز سنائی دی، ارے نازنین، تم وہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے پیچھے دیکھا اور فوراً ان دونوں کی طرف دوڑ لگا دی، نہیں کوئی نہیں۔
बस इसे कुछ मदद चाहिए थी, मैंने लापरवाही से कहा और उनके साथ चलने लगी। मगर वो दोनों रास्ते में मुझसे पूछने लगी, अरे ये कौन था, इसकी आंखों का रंग देखा है? हेज़ल ने फारिया से कहा। जब फारिया ने जवाब दिया, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, पहले तो कभी यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आया। उन दोनों की बातें सुनकर तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अपना डर छुपाकर बोली, अरे इसने शायद लेंस लगाए होंगे, तभी पहचाना नहीं जा रहा होगा कोई सीनियर। खैर हमें क्या, हम तीनों हॉस्टल पहुंच गई। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसकी वो नीली आंखें अब तक मेरे हवासों पर छाई थी। जैसे ही आंखें बंद करती वही नीली आंखें सामने आ जाती। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने उठकर देखा तो वो दोनों आराम से सो रही थी। मैं फौरन बिस्तर से उठी, टेरेस का दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। जैसे ही मेरी नज़र टेरेस पर पड़ी तो मेरे हलक से एक चीख निकल गई, डेविड यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी उसी हुडी में। मेरी चीख सुनकर वो दोनों भी उठ गई, फौरन मेरे पास आई। नाज़नीन क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो, और तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है, तुमने क्या देख लिया है? उनकी बातें सुनकर मैंने फौरन उस तरफ इशारा किया जहाँ डेविड खड़ा था और कांपती आवाज़ में बोली, वहाँ वहाँ वो खड़ा था। उन्होंने परेशान होकर पूछा, किसे देखा तुमने? मैंने आंख बंद करके उस जगह इशारा किया, मगर जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोलकर देखा वहाँ डेविड बिल्कुल भी नहीं था। वो जगह खाली थी। मैंने फौरन बात संभालने की कोशिश की, वो मैंने तो काले मोटे बिल्ले को देखा था, लगता है शायद भाग गया है। मैंने झूठ बोला। ये सुनकर वो दोनों एक साथ हंस पड़ी। नाज़नीन तुम कब से बिल्लियों से डरने लगी? मुझे लगता है जब से तुमने उस नीली आंखों वाले शख्स को देखा है तुम्हें तब से ही डर लगने लगा है। वो दोनों डेविड की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बाजू से थामकर अंदर लेकर आई। ये पहला दिन था जब मेरी नींद यूं ओझल हो गई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हर आने वाला दिन मेरे लिए कोई ना कोई खौफनाक सूरत हाल लेकर आएगा। मुझे हर जगह ही डेविड दिखाई देता। जब भी मैं कैफ़े में अकेली होती मुझे लगता जैसे वो मुझे देख रहा है। वो हमेशा मेरे सामने आ जाता था। मैंने अपनी सहेलियों से पूछा कि डेविड कौन है और क्या करता है। उनकी एक ही बात होती थी कि इस नाम का तो कोई लड़का हमने नहीं देखा और ना ही नीली आंखों वाला कोई लड़का इस यूनिवर्सिटी में आया है। अगर होता तो कब से लड़कियां उस पर फिदा हो जाती। उस रोज़ मैंने फैसला कर लिया था कि मैं डेविड से साफ साफ कहूँगी कि वो मेरे रास्ते में ना आए। जब वो कैफ़े में मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने बात शुरू की, देखो मेरे पीछे मत आया करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने संजीदगी से पूछा, तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आते हो? मेरी बात पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तब से रोज़ इस यूनिवर्सिटी में आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि चांद का कोई टुकड़ा उसके सामने हो। मैं खुद में सिमट गई थी। फिर फौरन बोली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऐसी लड़की नहीं और ना ही मैं लड़कों से दोस्ती करती हूँ। मैं फौरन वहाँ से वापस आ गई। मेरे सर में दर्द था। मुझसे असाइनमेंट कोई भी काम नहीं हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अगले दिन ज़रूर सर से डांट पड़ेगी। मैं जो हमेशा क्लास की बेहतरीन तालबा रही थी, पहली बार मैंने असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की थी। अगले रोज़ जैसे ही सर ने मुझसे असाइनमेंट मांगी, मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले ही लम्हे फारिया ने मुझसे असाइनमेंट पेपर मांगा। मैंने उससे कहा, मेरे बैग में है, ले लो। फिर जैसे ही उसने वो असाइनमेंट पेपर लिए तो हैरानगी से कहने लगी, नाज़नीन ये क्या, ये असाइनमेंट पेपर तो फिल है, इस पर तो तुमने असाइनमेंट लिखी हुई है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और असाइनमेंट शीट देखी। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो तो उसी मजमून की असाइनमेंट थी जिसके लिए मैंने सर से माफ़ी मांगी थी कि सर मैं बनाना भूल गई। फारिया ने फ़ौरन मुझसे कहा, जल्दी से जाकर सर को दे दो। मैं सर के पीछे भागती असाइनमेंट लेकर गई और सर को जमा करवा दी। पर मेरी सोच अब तक उसी में फंसी हुई थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उस वक्त यूनिवर्सिटी के एक सुनसान से बेंच पर बैठी मैं यही सोच रही थी जब मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारी असाइनमेंट किसी और ने नहीं बल्कि मैंने बनाई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे सर में दर्द था, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। तुम्हारा दोस्त हो ना, मदद ना करता तो फिर दोस्त किस बात का होता। जैसे ही पलटकर पीछे देखा, वही हुडी पहने खड़ा था। मैंने चीख कर उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्यों मेरी असाइनमेंट बनाई है? मैंने तुम्हें कब कहा था? पर उसके तासुरात ऐसे थे जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। मैं चीख चीख कर उसे बोल रही थी और इर्द गिर्द देख रही थी ताकि कोई मुझे देख न सके, पर हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं जा रहा था। मुझे घबराता हुआ देखकर वो फ़ौरन बोला, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देता।
उसने मुझसे जैसे ही कहा तो मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सुनसनी सी दौड़ गई। मैं झट से बोली, फिर कौन हो तुम जो मेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे सकते? ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है तो तुम्हें शाम के वक्त सी पॉइंट पर मिलना होगा, वहीं मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। ऐसा राज बताऊंगा जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगी। उसने मुझसे जैसे ही कहा तो मेरे होश उड़ गए। वो फौरन वहाँ से गायब हो गया था। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि आखिर वो कहाँ गया है। वो बिजली किसी तेज़ी से आता और जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं यही सोच रही थी जब पीछे से हेज़ल और फारिया ने मुझे बुला लिया। क्या सोच रही हो नाज़नीन? जब से कंसर्ट हुआ है ना, तब से तुम्हारे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। चलो हमारे साथ। मैं उनके साथ दोबारा से हॉस्टल आ गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि डेविड ने मुझसे मिलने का कहा है। उसी रोज़ शाम के वक्त मैं सी पॉइंट चली गई थी और बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि उसे कैसे पता होगा कि मैं इस वक्त उससे मिलने आई हूँ। मैं यही सोच रही थी जब पीछे से मुझे किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। जैसे ही देखा तो वो उस वक्त स्याह हुडी पहने मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुझसे कहने लगा, मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, अब आ जो गई हो तो आओ, चलो कुछ देर बैठकर बातें कर लेते हैं। मैं उसके साथ समुंदर के किनारे पर आ गई। जब कुछ ही पल में मैंने उससे पूछा, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, कौन हो? अभी मैंने इतना ही कहा और लापरवाही से उसकी जानिब देखा तो उसकी वो नीली आंखें बिल्कुल स्याह हो गई थी। एक रोशनी सी उसके इर्द गिर्द छा गई थी, जिसके बाद उसका वजूद बिल्कुल सफ़ेद साए में तब्दील हो गया। ये देखकर मैं करंट खाकर एक झटके के साथ पीछे हो गई थी। घबराते हुए चीख कर बोली, कौन कौन हो तुम, और आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं सहम कर चिल्लाई थी। अगले ही पल वो फिर से अपने इंसानी रूप में वापस मेरे सामने आ गया। फिर कहने लगा, अरे नाज़नीन, घबराओ मत, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, गुस्सा मत होना। हाँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं जिनज़ादा हूँ। मेरा नाम डेविड है और मैंने तुम्हें उस रोज़ यूनिवर्सिटी के कंसर्ट पर देखा था। मैं उस वक्त अपने चर्च पर गया हुआ था। जैसे ही मुझे कंसर्ट की आवाज़ आई तो मैंने झांक कर देखा, फिर मेरी नज़र सबसे अलग थलग बैठी तुम पर पड़ी थी। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर ये लड़की कौन है। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ से लापरवाह, अपने ही ख्यालों में खोई हुई लड़की। उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। उसकी आखिरी बात पर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं फ़ौरन वहाँ से उठ गई। ठीक है, नहीं करना चाहते हो ना दोस्ती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया कि तुमने मेरी जान छोड़ दी। ये कहते साथ ही मैं वहाँ से जाने वाली थी जब जिनज़ादे ने मेरा हाथ थाम लिया। रुको तो सही, ये आधी बात है, पूरी बात सुन कर जाना। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो अब उस दोस्ती से आगे का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात सुनकर मेरा वजूद लरजने लगा था। मैंने करंट खाकर अपना हाथ उससे छुड़वाया। मेरा हलक तक खुश्क हो चुका था कि अब मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैं वहाँ से भागने लगी थी। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर पीछे देखती, जब एक झटके के साथ बिजली किसी तेज़ी से वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरा रास्ता रोक लिया। बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूंगा, सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूँ। क्या हुआ जो आदमजादी से इश्क कर बैठा? हमारे भी तो जज्बात होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, मैं किसी जिनज़ादे से शादी नहीं कर सकती। जब वो बोला, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, एक इंसान की तरह, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुम्हें क्या चाहिए? वो फ़ौरन मुझे अपनी इस बात का यकीन दिलाने लगा। मैं तो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे कोफ्त हो रही थी, मेरा वजूद थर थर काँप रहा था। अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रहती तो ज़रूर बेहोश हो जाती। मैंने हाथ जोड़कर तंग आकर उसे कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। समझ क्यों नहीं रहे? इससे पहले कि मेरा वजूद बेजान होता, अगले ही पल उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। फिर मैंने महसूस किया जैसे मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। फिर जैसे ही मेरे पाँव ज़मीन पर लगे तो मैंने हर तरफ निगाह दौड़ाई। वो मंजर बिल्कुल तब्दील हो गया था। कुछ देर पहले जो मैं समंदर के किनारे पर खड़ी थी, अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। रात का वक्त था। वो मेरे कान के करीब आया और सरगोशी में बोला, तुम वापस जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया। मैं भागते हॉस्टल आ गई थी। मेरी सहेलियाँ मुझे घबराता हुआ देखकर मेरे पास आकर बैठ गई। मुझसे पूछने लगी, अरे क्या हुआ है, तुम आज कहाँ गई थी, इतनी देर से आई हो? किसी से दोस्ती तो नहीं हो गई जो यूँ रात को हॉस्टल आने लग गई हो? वो दोनों मुझे छेड़ने लगी, जबकि मैं गुस्से से चिल्लाकर कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी मैंने इतना ही कहा था जब वो दोनों बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। उनकी बात पर मैं उसे जिनज़ादे का सोचे जा रही थी कि क्या इन दोनों को बता दूं, लेकिन अगर बता देती तो ये दोनों मेरी बात का यकीन ना करती। मैं सारी रात सोचने लगी कि आखिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी। जब तक उसे कोई जवाब नहीं दूंगी वो तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा। अगर ये जवाब देती कि मैं जिनज़ादे से शादी नहीं कर सकती, तो वो फ़ौरन ये जवाब देता कि वो इंसानी रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगा। तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वो तो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जबकि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। हमारे मज़हब में गैर मज़हबी लड़कों से शादी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यही सोचकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि मैं उसे बिल्कुल भी निकाह नहीं कर सकती। मेरा दिल बिल्कुल मजबूत हो चुका था। डेविड मुझे अब हर तरफ दिखाई देता। मैंने अभी उसे जवाब नहीं दिया था जब एक दिन यूनिवर्सिटी में अचानक ही मुझे एक सर ने अपने ऑफिस में बुलाया। तो मैं जैसे ही सर के ऑफिस में गई, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उनकी जगह डेविड उनकी सीट पर बैठा हुआ था और मुझे देखकर फ़ौरन खड़ा होकर मेरे पास आया और बोला, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ नाज़नीन। किसी को इतना भी इंतज़ार नहीं करवाते। चलो अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैंने दो टोक लहजे में कहा, मेरा जवाब यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो वो फ़ौरन से गहरी सांस खारिज करके बोला, और क्यों, क्या मैं जान सकता हूँ? मैं दांत पीस कर बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो और मैं अपने मज़हब के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं फ़ौरन वहाँ से वापस आ गई। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। इतने दिन से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर अब फिर से उससे मिलकर मुझे वैसे ही बेचैनी होने लगी थी। दूसरी बात ये थी कि हेज़ल और फारिया को भी वापस अपने मुल्क जाना था और वो दोनों इंडियन थी। मैं उदास हो गई थी। मुझे अपने घर वाले याद आने लगे और मैं वापस किसके पास जाती? मेरे अम्मा अब्बा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मैं अपनी खाला के पास रहती थी। मेरी खाला ने मेरे हिस्से की जितनी भी ज़मीन थी वो सब बेच दी थी और मुझ पर फैसला छोड़ दिया कि उन पैसों का मैं क्या करूँगी। मैंने यही फैसला किया था कि मैं बाहर आकर अच्छी पढ़ाई करूँगी और अब मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। ये सोचकर घबराहट होने लगी कि मैं अकेले कैसे हॉस्टल में रहूँगी। हेज़ल और फारिया के बगैर मुझे अपने रूम में वहशत हो रही थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर जैसे ही मैं अपने रूम में आई तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि डेविड मेरे रूम में था। मैं बौखलाकर चीख कर उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब वो कहने लगा, मैं तैयार हूँ, उसकी सुनकर मैं नासमझी की हालत में उसे देखने लगी। किसके लिए तैयार हो? क्या हम कहीं जा रहे हैं? वो सांस खींच कर बोला, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खातिर मैं मुसलमान हो जाऊँगा। फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा वो बैग जो मैंने अपने हाथ में थामा हुआ था फर्श पर गिर गया था। मैं गहरी सांस लेकर उसे घूर रही थी जब वो कहने लगा, हाँ सच में तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ और उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? वो जज्बाती होकर मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोला। मैंने उससे कहा कि तुम मुसलमान कैसे होगे? तुम क्यों मज़हब तब्दील करना चाहते हो? वो बोला, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने उससे कहा कि सिर्फ मज़हब तब्दील करने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे, तुम्हें हमारे वाले तौर तरीके अपनाने होंगे, मुसलमानों की तरह नमाज वगैरह इबादत करनी होगी। क्या तुम्हें वो आती हैं? जब वो बोला, क्या हुआ, तुम मुझे सिखा देना, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद बस तुम मुझसे शादी कर लेना। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपना मज़हब तब्दील करने के लिए तैयार है। क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था? मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब मेरा हाथ थाम कर मुझे हॉस्टल से बाहर ले जाने लगा। बोला, चलो मेरे साथ, मैं अभी मुसलमान हो जाता हूँ, तुम अभी ही मेरा मज़हब तब्दील करवा दो, मुझे मुसलमान कर दो और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने फ़ौरन उससे अपना हाथ अलग किया। ये क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब वो बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे मज़हब की वजह से मुझसे शादी नहीं कर सकती, तो फिर जब मैं अपना मज़हब तब्दील कर लूँगा तो तुम्हारे पास तो कोई दूसरा मसला ही नहीं है। मैं सर पकड़ कर रह गई। मैंने उसे हाथ जोड़कर कहा, तुम इस वक्त हॉस्टल से चले जाओ, मुझे सुकून का सांस लेने दो। मेरी हालत देखकर उसे मुझ पर तरस आ गया। वो वहाँ से चला गया था। मुझे उस पूरे कमरे से वहशत हो रही थी। अब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे लिए अपना मज़हब तब्दील कर लेगा। मैं जानती थी कि इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है। मेरे अपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सगे माँ बाप थे जो कि मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं हमेशा से यही दुआ करती थी कि कोई हो जो मुझे इतनी गहराई से दोस्ती कर ले कि हमेशा मेरे साथ रहे, पर वो जिन ज़ात होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं यही सोच रही थी कि
अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और दिल से मुसलमान हो गया तो क्या मैं उससे सच में शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ये सोचकर मैं हलकान हो रही थी जब अचानक से मेरा मोबाइल बजा। मैंने जैसे ही देखा तो वजीह की कॉल सुनकर मेरे होश उड़ गए। वजीह मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहा था? फ़ौरन से फ़ोन उठाया। वजीह मेरी खाला का ही बेटा था, मुझसे 2 साल बड़ा था। उसने मुझसे थोड़ी देर बातचीत की, फिर कहने लगा, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल की है। तुम पाकिस्तान कब आ रही हो? मैंने उससे कहा कि मैं पाकिस्तान कभी नहीं आऊँगी, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। जब वजीह बोला, अगर तुम पाकिस्तान नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा। मैं जो बिस्तर पर लेटी थी फ़ौरन से उठ बैठ गई। ये कैसी बातें कर रहे हो वजीह, खैर तो है? अगली बात सुनकर मैं करंट खाकर रह गई, क्योंकि उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, बार बार फ़ोन कान से हटाकर देख रही थी कि क्या ये वजीह है। जब वो मुझसे बोला, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा और अगर तुम्हें पाकिस्तान आने में मसला है तो शादी के बाद तुम मुझे पाकिस्तान से यूके बुला लेना, हम दोनों वहीं रह लेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग माऊफ हो गया। अगले ही पल मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया। मेरे सर में दर्द की एक टीस सी उठ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सर बहुत भारी हो रहा और दर्द से फट जाएगा। मैंने सोने की कोशिश की। जब कच्ची नींद में थी मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा सर कोई दबा रहा हो। आखिर ये कैसे हो सकता था? पर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। मेरे सर का दर्द एक पल में ख़त्म हो गया और यूं मैं गहरी नींद सो गई। अगले दिन मैं बहुत फ्रेश थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी गई मुझे डेविड खड़ा दिखाई दिया। कहने लगा, आखिरी क्लास होगी तो मुझे बताना, तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊँगा। जैसे ही मेरी आखिरी क्लास हुई मैं उसे बताए बगैर हॉस्टल चली गई, पर अभी आधे रास्ते में थी जब मेरा रास्ता डेविड ने रोक लिया। वो बहुत गुस्से में था और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जान गया हूँ, वजीह ने तुमसे इजहार मोहब्बत किया है ना। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे नुकसान पहुँचाऊँगा। मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी बातें सुनकर मेरे चक्के छूट गए। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरा कज़न है। जब वो बोला, तुम शायद भूल रही हो कि मैं जिनज़ादा हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। अब फ़ौरन मेरे साथ चलो ताकि मैं मुसलमान हो जाऊँ। मैं बुरी तरह से फंस गई थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे या किसी और को ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, मैं मानती थी कि मैं वजीह से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अगर वो जिनज़ादा उसे नुकसान पहुँचा देता तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर पाती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से होता। मजबूरी के नाते मैं उसके साथ गई। जिनज़ादा मुझे जहाँ लेकर आया था वो यूनिवर्सिटी से कुछ दूर बनी एक मस्जिद थी। कहने लगा, इस मस्जिद के मौलवी को बता दो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और कुछ ही देर में मैं मौलवी साहब से बात कर चुकी थी। मौलवी साहब ने डेविड को कलमा पढ़ा दिया। डेविड खुश हो गया था। कहने लगा, अब तो मुझसे शादी करोगी ना? चलो हम शादी करते हैं। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा कि मुझे लगा जैसे मेरे हाथ की हड्डियाँ टूट जाएंगी। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैंने उससे कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। मैंने इतना ही कहा था जब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। दांत पीस कर बोला, मुझे धोखा मत देना, मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब उसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, डेविड, मुसलमान तो तुम हो गए हो, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान हो। ये काफ़ी नहीं है, मैं 1 साल इंतज़ार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 1 साल तक तुम बिल्कुल मेरी तरह मुस्लिम बनकर रहो। तुम्हें हर वो तरीक़ा अपनाना होगा जो मैं अपनाती हूँ। मेरी तरह नमाज़ पढ़ोगे। 1 साल में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम अपने मज़हब से बिल्कुल पलट गए हो और हमारे मज़हब को अपना चुके हो, तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगी। मैंने उसे पुरज़्म लहजे में कहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो 1 साल के लिए आजमा कर देख लो। और यूँ मैंने 1 साल का वक्त मांगा। दिल से मैंने लाख शुक्र अदा किया कि शुक्र है 1 साल का वक्त तो मिल गया। उस 1 साल में आराम से मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन डेविड ने अपना नाम भी बदल दिया था। उसने अपना नया नाम बताया था कि मैंने मुसलमानों वाला नाम रख दिया है। मेरा नाम दानियाल है। अब हमेशा मैं जब भी नमाज़ पढ़ती मेरे थोड़े फासले पर जायनमाज़ बिछाकर बिल्कुल मेरी तरह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता। एक रोज़ मुझसे बोला, नाज़नीन, मुझे समझ लग गई है कि सिर्फ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम मुझे नमाज़ सिखा दो। मैंने हफ्ता और एतवार ख़ास उसके लिए वक्त रखा। वैसे भी हेज़ल और फारिया भी छुट्टियों पर गई हुई थी। अब मैं उसे नमाज़ सिखाया करती। वो काफ़ी खुश दिली से नमाज़ सीखता। आहिस्ता आहिस्ता उसे पूरी नमाज आ गई। जब वो कहने लगा कि मुझे कुरान भी पढ़ना सिखा दो। अब मैं रोज़ शाम के वक्त उसे कुरान की तिलावत सिखाया करती। उसकी किरात बहुत अच्छी थी। जब एक रोज़ अचानक से वो गायब हो गया। 1-2 दिन मेरे पास नहीं आया तो वो दिन मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। दिल से सुख का सांस लिया कि दानियाल नहीं आया, लेकिन 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैं दानियाल को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी। 1 हफ्ते बाद मुझे ख्याल आया कि आखिर क्या वजह है कि वो मुझसे नहीं मिल रहा। मेरे दिल में होल उठने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई नुकसान पहुंच गया हो। ये सोचकर मेरे होश उड़ गए। 1.5 महीना यूं ही गुजर गया। मैं काफ़ी गुमसुम थी। हेज़ल और फारिया अपनी छुट्टियों से वापस आ गई, जबकि मैं अभी भी दानियाल को याद करके उदास हो जाती। न जाने कहाँ चला गया था। फिर एक रोज़ अचानक ही मुझे एक ख्वाब आया। वो ख्वाब इतना खौफनाक था कि उसे देखकर एकदम मैं चीख कर नींद से उठ गई।
मेरी रूममेट मुझे पानी पिलाने लगी और हौसला देने लगी। वो मेरी कमर थपथपाते हुए बोली, नाज़नीन तुम ठीक तो हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने ख्वाब में क्या देखा? उसकी बात सुनकर मुझे ख्वाब याद आया। ख्वाब में मैंने दानियाल को देखा था, जिसकी खौफनाक शक्ल थी। सफ़ेद साए की तरह 3-4 जिन्नज़ादे उस पर हमला कर रहे थे और उसे मार रहे थे। वो खौफनाक ख्वाब देखकर मैं उठकर बैठ गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दानियाल की जान को खतरा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान होने की उसे कीमत चुकानी पड़ रही हो। उसके सारे दोस्त वगैरह उसके खिलाफ हों कि उसने अपना मज़हब क्यों तब्दील किया। ये सोचकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। 2 महीने के बाद दानियाल यूनिवर्सिटी की एक बेंच पर उदास बैठा दिखाई दिया। मैं जैसे ही उसके पास गई तो उसका चेहरा देखकर मेरे हलक से चीख निकली। उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा था। मैंने दानियाल से कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? तो दानियाल के चेहरे पर दर्द में भी एक मुस्कान आ गई। वो बोला, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मेरे दोस्त मुझे जो मर्जी कहें, मैं अपना मज़हब तब्दील कर लूँ, वापस अपने मज़हब को अपना लूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन अब तो मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। जानती हो, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। हाँ, ये जो चोट आई है मेरे दोस्तों ने दी है। मैं अपनी बस्ती में फजर की नमाज़ पढ़ रहा था जब अचानक किसी ने मेरे ऊपर गर्म खोलता पानी डाल दिया और यूँ सारे जिन्नज़ादों को पता चल गया कि मैं एक मुसलमान हूँ। तो उन सब ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझे मजबूर करने लगे कि मैं वापस ईसाई हो जाऊँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपना मज़हब अपनी खुशी से कबूल किया, लेकिन उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। वो मुझे काफ़ी फ़ख्र से बता रहा था। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से शर्मिंदा हो गई। मैंने सर झुका लिया था। मैंने उससे कहा, देखो दानियाल, कितना मुश्किल है, क्यों कर रहे हो? तुम वापस अपनी बस्ती में जिन्नज़ादों के साथ चले जाओ, उनकी बात मान लो और मेरी जान छोड़ दो। जब वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो नाज़नीन, तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुम भूल तो नहीं जाओगी? वो फ़ौरन से उठकर मेरे पास आया, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि मैं तो उससे आंखें ही नहीं मिला पा रही थी। उस रोज़ यूनिवर्सिटी में आखिरी क्लास लेकर मैं हॉस्टल जाने वाली थी जब मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने जैसे ही देखा वजीह की कॉल थी। वो मुझसे बोला, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया नाज़नीन, मैं तुमसे मोहब्बत का एतराफ़ कर चुका हूँ, लेकिन जवाबन तुम्हारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि यूके में तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया है? उसकी बातें सुनकर मैं तंग आ गई थी कि इसे क्या जवाब दूँ, जब अगले ही पल अचानक किसी ने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया। वो कोई और नहीं, दानियाल था। जिन्नज़ादे को पास देखकर मैं ठटक गई। मैंने गुस्से से कहा, दानियाल मोबाइल दे दो, मेरे कज़न की कॉल है। लेकिन अगले ही पल उसने बगैर कुछ सोचे समझे मोबाइल हाथों से तोड़कर चकनाचूर कर दिया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं उससे नाराज़ हो गई और वापस हॉस्टल आ गई। मुझे दानियाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इस बार जो काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। बेशक वो मुझे लेकर जो भी सोचता, लेकिन मैं वजीह से बात करना बंद नहीं कर सकती थी। मेरी खाला का बेटा था, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं 3-4 दिन दानियाल को नज़रअंदाज करती रही, उससे कोई बात ना करती। फिर एक रोज़ वो मेरे पास आया और मुझे एक खूबसूरत सा डब्बा दिया। मैं चौंक गई कि उस डब्बे में क्या है। जब वो कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, तुम्हारा मोबाइल मैंने तोड़ा था ना, उसके बदले तुम्हें ये खूबसूरत तोहफ़ा दे रहा हूँ। मैंने फ़ौरन से उसी वक्त जैसे ही वो डब्बा खोला तो नए मॉडल का मोबाइल देखकर मेरी हैरत से आंखें चमक गई, क्योंकि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लेती इतना कीमती मोबाइल 3-4 साल में भी ना ले पाती। दानियाल मुझसे माफ़ी मांगने लगा, नाज़नीन मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, वजीह के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसने आखिरी बात पर गुस्से से जोर दिया। मैं सर थाम कर रह गई कि न जाने इसे वजीह से क्या मसला है। मैंने दानियाल को समझाया, दानियाल तुम्हें लगता है कि वजीह मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम बचपन से ही साथ रह रहे। जब वो कहने लगा कि उसकी नीयत बहुत गलत है, मैंने कहा कि इसमें क्या गलत है, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो इसमें उसकी नीयत कहाँ बीच में आ गई। मेरी बात पर कहने लगा कि वजीह सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी करना चाहता है, क्या मैं गलत हूँ? वो मुझसे गोया सवाल कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। 1 साल कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। 1 साल के अंदर वो डेविड जो हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता, अब वो दानियाल बन चुका था। वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो गया था। वो अपने आप को बिल्कुल तब्दील कर चुका था। उसका लिबास तब्दील हो चुका था। वो पहले जीन्स और हुडी में होता, अब हमेशा शलवार कमीज़ में नज़र आता। उसका वो पुरनूर चेहरा अब दाढ़ी में और भी खूबसूरत लगता। उसकी वो नीली आंखें काफ़ी हयादार हो चुकी थी। इस बात का एतराफ़ तो उसने मुझसे 1 लाख बार किया कि मेरे अलावा वो किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। 1 साल में मुझे उसकी इतनी आदत हो गई कि अगर वो एक दिन भी मेरे पास नहीं होता तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती। हर कोई मुझे हैरत से देख रहा होता और यही समझता कि मैं पागल हूँ जो यूं ही खुद से बातें कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ बैठे उस जिन्नज़ादे को कोई भी नहीं देख सकता था,
1 साल बाद वो मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आया। मैं खिलखिला गई। मैंने उससे पूछा कि ये फूल किस खुशी में है। तब उसने मुझे याद करवाया कि 1 साल हो गया है, अब वक्त आ गया है कि हम शादी के बंधन में बंध जाएं। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं है ना, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। मुझे ये डर था कि क्या मुझे ये मुआशरा कबूल कर लेगा अगर मैंने एक जिनज़ादे से शादी की। मुझे अब दानियाल से कोई मसला नहीं था। मैं दिल से इस बात पर यकीन कर चुकी थी कि वो सच्चे दिल से मुसलमान हो गया। उसने अपने साथियों के खिलाफ जाकर मेरी खातिर अपना मज़हब तब्दील किया, लेकिन अब वो खुद भी सच्चे दिल से मुसलमान था। मैं यही सोच रही थी कि जब उसने मुझे प्यार से कहा, नाज़नीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस बात का खौफ है, यही ना कि तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, तुम्हारी खाला क्या कहेगी, और तो और वो वजीह क्या कहेगा जो सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। वो बस ये चाहता है कि वो तुमसे शादी कर ले और फिर तुम्हारे साथ यूके आ जाए, फिर यूके आकर अपनी मर्ज़ी के काम करे। इसीलिए तो तुम्हारी खाला इस बात के खिलाफ जाएंगी। मैं कहता हूँ कि अपनी खाला को छोड़ दो, हम चुप कर निकाह कर लेते, किसी को नहीं पता चलेगा। मैंने दानियाल की बात सुनी तो फिर उसे कहा, देखो दानियाल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम भी मुसलमान हो गए हो, अब तुम्हें पता है कि मुसलमान मज़हब में क्या जायज़ और क्या ना जायज़। ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं कि जिनज़ादे और आदमज़ादी की शादी हो सके। मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया। तब अगली बात मैंने उससे कही कि हम एक दोस्त हो सकते हैं, लेकिन निकाह बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि निकाह शरीयत में बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। इससे बेहतर यही है कि तुम मेरी मदद करते हो, वैसे ही मेरी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त रहेंगे। दानियाल ने मेरी बात सुनी तो गुस्से में आ गया और फ़ौरन बगैर कुछ कहे वहाँ से गायब हो गया। मैं जानती थी कि वो वक्ती तौर पर नाराज़ है, लेकिन अब वो पहले वाला जज्बाती दानियाल नहीं रहा था। अब वो समझदार हो गया था, वो जानता था कि क्या ठीक है क्या गलत। 4 दिन वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आया। 5वें दिन वो दोबारा आया, जब उसने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। खुशी में उसके करीब चली गई। मुझे पता ही नहीं चला जब वो फिर बोला कि मेरी एक शर्त है कि तुम मेरी शर्त सारी ज़िंदगी के लिए, क्या वो मानोगी? उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने उससे पूछा, क्या शर्त है? जब वो बोला कि मेरी शर्त यह है कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी किसी से भी शादी नहीं करोगी। उसकी शर्त सुनकर एक पल को तो मैं ठटक गई थी, लेकिन मैं सोचने लगी कि आखिर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, पर अगले ही पल उसने मेरे सामने अपना हाथ रखा। चलो ठीक है, मुझसे वादा करो। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और मुस्कुराकर बोली कि वादा करती हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ सारी ज़िंदगी तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया था। यूँ जिनज़ादे और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि हेज़ल और फारिया को भी मैं वक्त नहीं दे पाती। वो मेरी बहुत मदद करता, मेरे आस पास रहता, और तो और मेरी असाइनमेंट्स, यहाँ तक कि आखिरी साल में मेरा वो बड़ा प्रोजेक्ट भी उसी ने मुकम्मल किया था, जिसमें मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन मिली। ये सिर्फ और सिर्फ जिनज़ादे की वजह से हुआ था। उसकी मदद के बगैर मुझे इतना बड़ा एजाज़ ना मिलता। मैं खुश हो गई थी। उसी रोज़ मुझे पाकिस्तान जाना था, क्योंकि मैंने वजीह को शादी से इनकार कर दिया था। मेरी खाला ने वजीह की कहीं और मंगनी कर दी थी और उसकी शादी होने वाली थी। शादी के लिए मुझे पाकिस्तान जाना था। जब जिनज़ादा ज़िद करने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, उसकी बात पर मैंने कहा कि तुम आखिर मेरे साथ कैसे रहोगे? जब वो कहने लगा, तुम देख लेना, तुम पाकिस्तान पहुँचोगी तो वहाँ मैं भी तुम्हारे पास ही हूँगा। उसकी बात को मैंने हंसी में उड़ाया। जब मैं पाकिस्तान पहुँची तो खाला की तरफ गई। हर तरफ गहमा गहमी थी। वजीह मुझसे काफ़ी खफा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो नई लड़की आई थी वो बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई थी। उनकी जोड़ी बहुत जच रही थी। बारात वाले दिन अचानक से मुझे एक लड़का दिखाई दिया। मैंने खाला से पूछा, खाला ये कौन है? खाला ने कहा कि लगता है लड़की वालों की तरफ से आया है। वो बार बार मुझे घूर कर देख रहा था। जब अचानक मुझे जिनज़ादे दानियाल की बात याद आई। देखना, मैं तुम्हारे पीछे पाकिस्तान आ जाऊँगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तभी एक बार मैंने उसे अलग थलग खड़ा होता देखा। मैंने उसके पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? जब वो पलटा तो उसकी आंखों में मैं झांकने लगी। मुझे साफ पता चल गया था कि वो अपना रूप बदल कर मेरे सामने आया है। जैसे ही मैंने उसे पहचान लिया तो वो मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, तुमने मुझे पहचान ही लिया? देख लो, सच्ची दोस्ती की यही निशानी होती है। तुमने कैसे सबके बीच मुझे पहचान लिया? हालांकि मैं तो अपना रूप बदल कर आया।